या आई थिंक लाइक what I'm एवरी trying, you understand what I'm कंटेंट शुड हैव अ बाउंड्री. जैसे कि कुछ लोग Correct. बहुत ज्यादा पर्सनल भी मतलब कंटेंट क्रिएट करना मतलब लग जाते हैं. जैसे कि यू नो कि कोई प्रेगनेंसी की भी वीडियो बन रही है, उन सब की भी वीडियो बन रही है, तो वो काफ़ी, हाँ एक तो लिमिट होनी चाहिए. बट लिमिट से मेरे को याद आया कि अगर आप जैसे बोल लो कि गवर्नमेंट जब बोल रही है कि हम यूट्यूब पे रेगुलेशन लेके आएंगे, कुछ ऐसा लेके आएंगे, तो डोंट यू थिंक कि हमारा जो फ्रीडम है, बिकॉज एक बार रेगुलेशन आ गया, देन वी विल थिंक कि अरे यार हम ये नहीं बना सकते बिकॉज फिर वो ऐसा है. तो डोंट यू थिंक कि वो हमारा फ्रीडम जाएगा रेगुलेशन यार से? देखो, you have to understand, in India also the freedom of expression is not absolute. It comes with some riders. Like, I have freedom of expression to criticize you, but I can't abuse you, right? I can't comment on your caste, I can't comment on your religion. But still people do, no? They still do it, but then it's not the... If I do it and nobody listens, like in a closed door, whatever I'm doing, nobody knows, right? वो तो अलग बात है. एक इंसान अपने चार दीवारी के अंदर क्या करता है is another thing. And if you're doing it on a Public for place public, or, yeah. like if public is consuming it, and if you see that the kind of a lot of young generation idealize these people, right? And are you gonna, like, you know, are you gonna normalize all those things which are a big no, which shouldn't say, right? So that is where I see, and freedom of expression, I absolutely, yes, everybody should be free to do what they want to say, but it should come with some riders. And this is why I speak about, like, you know, the philosophies of journalism, mostly the ethics and do's and don'ts of journalism, right? Because in journalism you will never use such terms or phrases. You know, you will be always, even in your criticism, even if you read the op-eds, the harshest of criticisms don't use abusive language. And imagine a newspaper having a headline FU, right? Whatever, FU XYZ political leader, right? And what would be the, like, what is this, right? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो और मुझे भी लगता है, और आप देखो ध्यान से, आप पढ़ो ना, आप किसी के कास्ट पे कमेंट नहीं कर सकते हो, किसी के रिलीजन पे नहीं कमेंट कर सकते हो. क्या जरूरत है कमेंट करने की? क्यों ऐसा वैसा उस दिशा में जाना ही नहीं है. और स्पेशली when you have an audience, when you have a large audience, when people have started idealizing you, when people have started following you, and you have become a case study for, like, you know, I want to be like this. People want to come to your podcast, or they want to come to your show, online shows. Then you have some sort of responsibility as well. Like, okay, I'll do it, but in a responsible manner. So again, to sum it up, yes, we have freedom of expression, and everybody, I totally support it, but also it comes with some riders, and we should never forget those riders. Ki our cultural values are slightly different from the cultural values of other, and we cannot just copy paste it over here. You know, मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है यार. मतलब आप पेरेंट्स को कुछ, मतलब जिस पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकते हो. हमारे घर में आज भी, हमारे घर में है ना, एक तहजीब होती है और ये सब चीज़ें होती हैं. तो और अगर आप बोलते हो कि यार नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ें लोग करते हैं, यार करते हैं, तो डजंट मीन ना कि टू नॉर्मलाइज इट, क्या नहीं अब तो ये स्टेपल इंडिया में तो ऐसे ही लोग बात करते हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा. और अभी आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, यूट्यूब पर आप जाइए, अनाप शनाप कंटेंट की भरमार है. और मुझे लगता है कि ठीक है, आप अगर वो अपना अंदर करो, अपना पर्सनल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बट जो जैसे कि जो वो आउटरीच था जिसकी आप बात कर, फॉर एग्जांपल जो फेमस कौन था वो कॉमेडियन, समय रैना और रणवीर, तो वो जो आउटरीच था, वो ऐसा ना कुछ ज्यादा ही आउटरीच था. सी देखो, देयर आर टू थिंग्स. सी यू आर राइट कि वो गलत था, जो वो कमेंट था, ठीक है. बट एक तो वो बहुत अच्छी केस स्टडी है कि लाइक पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, फिर आपको ऑडियंस ने उसी हिसाब से फॉलो किया है. बट वहीं पे अगर आप ऐसा कूल बनने की कोशिश किया है, तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ने आपको मतलब एक आउटरीच दे दिया कि ठीक है कि हाँ यार ये तो बंदा शरीफ था, एंड द वे ही थिंक्स, राइट. तो बट मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू कि जो वो आउटरीच था, आई थिंक कि शायद वो ज़्यादा था. या सो क्या होता है कि अब देखो, तो पहले nobody can endorse what he said, ठीक है.
But at the same time, if he has apologized, we should forgive. Yeah. ठीक है, सिंपल एज दैट, है ना. उसको लेकर इतना बवाल काटना, मंत्री सब ठीक घुस है. गए। वो तो चलो ठीक है, उनका काम उसके है। लिए अब वो तो यू कांट हेल्प इट. इफ समथिंग बिकम्स लाइक दिस big, then you know people will speak about it and comment on it and everything. But then like इतना एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए कि यार बोलने में भी लोग डरे, you know, मतलब ठीक है. and also I think if someone has apologized, I believe in, Yeah. if someone has apologized and sincere apology है, तो फिर you should, you know, उसमें उसको क्या जेल थोड़े भेजोगे, मतलब यार इस फांसी। मतलब हाँ वही तो, फांसी का फंदा थोड़े लगा दोगे. लेकिन ठीक है. एंड आई थिंक पीपल इन जुडिशरी आर मच मोर लाइक दे हैव मच मोर क्रेडेंशियल टू हैंडल द सिचुएशन एंड कंपेयर टू मी. लाइक हम लोग से ज्यादा ही पढ़े लिखे वो लोग हैं, Yeah, of ज्यादा course. समझदार लोग हैं. मेरा पर्सनली मानना है कि हाँ ठीक है, गलती हुई है, लेट इट, वी शुड फॉरगिव देम.